continues us to inspire us to uphold the values of our Constitution. Let us extend a warm and heartfelt welcome to our principal, sir. Sir, your constant support and encouragement motivate us to reach new heights. And today, as we celebrate our nation's Republic Day, we also acknowledge invaluable contribution you made to our growth. आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, देश की हम संतान है, तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी यह पहचान है. Good morning, our honorable principal, sir, respected vice principal, ma'am, esteemed teachers, parents, and dear students. I, Vatsalarya, And I, Lavanya Singh, welcome you all to the 76th Republic Day celebration. It is indeed an honor to stand before you all, to gather here to celebrate the 76th Republic Day of our beloved nation, India. And as the tricolor flutters majestically in the crisp breeze, it serves as a powerful reminder of our collective responsibilities and the promise of a brighter future ahead. It's a day that brings us all together. So let us celebrate the Republic Day with pride, joy and renewed commitment to the ideals of our Constitution. On this glorious occasion of Republic Day, we are about to take part in one of the most significant moments of the celebration, the hosting of our national flag. We are honored to have our Honorable Principal Sir and Vice Principal Ma'am with us today to perform this sacred duty. We request our Principal Sir and Vice Principal Ma'am to kindly come forward and host the national flag. Following the flag hosting, we will all join together in singing our national anthem. हेलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our soul. Let's salute the nation on this Republic Day. Now, it's a time for a moment of great pride and honor. The parade platoon has worked tirelessly, showing remarkable teamwork and strength in preparation for this grand occasion. We would like to request our respected Principal Sir to kindly inspect our parade platoon. Your presence and inspection will not only motivate the platoon but also inspire them, continuously upholding the value of discipline.
Our troops are ready for inspection. step, we witness not just their march, but their hard work, discipline and unity that has brought them here today. Every movement is a reflection of their dedication. Each step they take has been earned through practice, perseverance and teamwork. The precision with which they march today speaks volume about their commitment to excellence. It's about coming together as one, working in perfect harmony and pushing through and challenge as a team. It's a reminder of importance of discipline and the value of working together towards a common goal. Let's give them a round of applause as they continue their march, showcasing the value that makes Aditya Birla so special. We are delighted to hear an inspiring speech in English that reflects the true essence of our nation. Now, we would like to invite Zulkar to deliver the English speech. Please welcome him with a huge round of applause. The dawn of freedom, bright and clear, echoes of the past we hold dear. From struggle to triumph, hearts unite, in the land of hope, our future's light.
Good morning everyone, Honorable Principal Sir, respected Vice Principal Ma'am, teachers and my dear friends. A very warm and happy Republic Day to all of you. On this day, we come together as a nation to honor the spirit of unity, diversity and democracy that defines India. Today, we are gathered here to celebrate 76th Republic Day of our great nation, India. On this day in 1950, our constitution came into effect, making us a sovereign democratic republic. Our journey since then has been remarkable, marked by unity in diversity and progress in various fields. उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आँखें. As students, we are the future of India. It is our duty to uphold the values enshrined in our constitution: justice, liberty, equality, and fraternity. Let us remember the sacrifice of our freedom fighters and strive to contribute positively in our country. We must work hard, stay dedicated and dream big. With determination and perseverance, we can overcome challenges and make India shine on the global stage. So let's pledge to be responsible citizens and contribute building a nation we can all be proud of. दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वफा आएगी. जय हिंद. Now we are going to listen a patriotic song Utho Jawan by ABPS students. Ready? 1, 2, 3, start. जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती.
Please welcome her with a warm round of applause. मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ और यहाँ की गणतंत्रता का ही गुणगान करती हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ और यहाँ की गणतंत्रता का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा। मैं आयुषी बस यही अरमान रखती हूँ, बस यही अरमान रखती हूँ। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। नमस्कार परम सम्माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मैं आयुषी चौबे कक्षा 9वीं ब की छात्रा आज आप सभी का गणतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज के इस पावन अवसर पर अपने मन के विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब यहाँ गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। आज ही के दिन भारत ने अपने देश के संविधान को अपनाया। भारत एक संप्रभु गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, परंतु एक लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए संविधान का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में हमारे देश का संविधान तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। यह देश का संविधान हमें हमारी स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार के बारे में याद दिलाता है। याद करें वो क्षण जब हमारा देश भारत ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, परंतु हम ही हैं वो भारतवासी जिन्होंने 300 वर्षों की गुलामी को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। हम ही में है इतना दम, पहचानो हमें। हम ही थे वो जो बाण फेंक कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। हम ही थे जो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और हम ही थे वो जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी कि ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर, सब पर करे गया। हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत, अमन और सुलह के हमराज हम ही हैं। विश्व शांति के लिए उठने वाली बुलंद आवाज हम ही हैं। देख लो हमारी हिस्ट्री उठाकर 5000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं किया, हमने कहीं जंग का कहर तोड़ा नहीं, परंतु किसी ने हमारी ओर आंख उठाकर देख लिया तो हमने उसे देखने लायक छोड़ा नहीं। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता है 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। तो फिर कौन है वो लोग जो सियाचिन के ग्लेशियर में -30 डिग्री पर तिरंगे के तार कस रहे हैं? कौन है वो लोग जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मार कर हंस रहे हैं? ऐसी जाबाजियां हाड़ मास के पुतलों में कहाँ? इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए। फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, अब क्या कोई और सबूत चाहिए? दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हम, दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम ही है, अहिंसा भी हम ही है, इनकलाब भी हम ही है, हम ही है गौतम बुद्ध और राणा प्रताप भी हम ही है। गलती से भी तुमने हमारी शराफत को कमजोरी समझ लिया तो बहुत पछताओगे। बांसुरी बजाने वाली उंगलियों ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तो फिर कहाँ जाओगे, तो फिर कहाँ जाओगे। अंत में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और उससे पहले यही कहना चाहती हूँ कि अपने जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। Wishing you all a very happy Republic Day. Respected parents, my dear colleagues, all my dear lovely children, wish you all a very fine morning and once again a happy Republic Day. Thank you very much for patience hearing. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir, for your inspiring words for us. हमको तो है जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है।
As we come to the conclusion on this memorable Republic Day celebration, it is the time to express our gratitude to everyone who made this auspicious event possible. We now invite our respected Vice Principal Ma'am to deliver the vote of thanks. Honorable Principal Sir, beloved parents, dear colleagues and my dear students. As we conclude today's celebrations, it's my duty to express my heartfelt gratitude to each and everyone who made this program a grand success. At the outset, I would like to extend my gratitude to our Principal Sir for his unwavering support and guidance. Sir, your words really inspiring us. Thank you very much for your motivating words. I also would like to appreciate all the efforts taken by our staff. Yesterday onwards, they were busy. All these days, they were giving practice to our students. So thank you very much, my dear colleagues, for making this function a grand success. Now, I would like to thank all the parents who had taken the time to come over here to be a part of the children's success also. And it is of course again inspiration for all of us. Thank you very much, dear parents, for sparing your valuable time for us. Now, thanks especially to all our students who had made this function a very grand success. Thank you everyone. Thank you very much. Commander Ajit Kumar, Home Guard, Platoon number 3, Platoon Commander Virendra Dubey, Aditya Birla Public School Girls Platoon, Platoon number 4, Commander Anika Singh, Aditya Birla Public School Boys Platoon, Platoon number 5, Commander Arbaz Khan. निरीक्षण गाड़ी प्लाटून के सामने से निरीक्षण करते हुए आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल गर्ल्स प्लाटून, प्लाटून कमांडर अनिका सिंह, आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल बॉयज प्लाटून, प्लाटून कमांडर अरबाज खान, प्रॉपर ड्रेसअप लाइनअप की प्रदर्शन करते हुए परेड मंच के सामने से सलामी देते हुए गुजरेगी। एसआईएस प्लाटून आगे। ग्राउंड मास्टर कदम से कदम मिलाते सिक्योरिटी एवं एसआईएस सिक्योरिटी प्लाटून आगे।
कंपनी प्लाटून कमांडर कदम से कदम मिलाते हुए, राज कपूर, कंधों से कंधे मिलाते हुए, हिल मार्च की बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मानो ये संदेश दे रहे हैं कमांडर कि मैं अजीत लीडर कुमार, हूँ, मैं वीर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ही शक्ति का रूप हूँ, मैं रणचंडी का हुंकार हूँ, मैं ही युद्ध भूमि का दहाड़ हूँ, प्लाटून कमांडर मैं भारत अनिका देश सिंह का जवान बेहतरीन हूँ, प्रदर्शन करते मैं हुए भारत देश का जवान हूँ, कदम ताल। मैं भारत देश का जवान हूँ। आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल बॉयज प्लाटून, प्लाटून नंबर 5, कमांडर अरबाज खान। ड्रम मास्टर कदम से कदम मिलाते हुए, कंपनी प्लाटून कमांडर राज कपूर, और सिक्योरिटी सर्विस प्लाटून, प्लाटून कमांडर अजीत कुमार, कमांडर वीरेंद्र, प्लाटून कमांडर अनिका सिंह बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कदम ताल। आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल बॉयज प्लाटून, प्लाटून नंबर 5, कमांडर अरबाज खान। इसी से रामधारी दिनकर का एक पंक्तियाँ मुझे याद आ रहा है। भूल जाना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर को। परेड की बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मुख्य अतिथि सलामी लिए हैं। आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका जोश, उनका मनोबल को बढ़ाएं। आपके सामने आने वाले भविष्य की एक झलक है। परेड की कार्रवाई की अंतिम फायर टीम का मनोबल एवं उत्साह को बढ़ाए। राशिद रहला की फायर टीम का ताकत एवं जलवा का प्रदर्शन करते हुए जोरदार तालियों के साथ सभी के आग्रह करूंगा कि फायर टीम का मनोबल बढ़ाते हुए तालियों का गड़गड़ाहट का बरसात होना चाहिए। फायर टीम का सुंदर प्रदर्शन
अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन, अपना वतन आंखों से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। ना झुकेंगे हम कभी, आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया, चल लहू से लिख दे खाक पे ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले, है तिरंगा शान अपनी देंगे इस पे जान अपनी, जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। धन्यवाद बच्चों, तालियां जोरदार होनी। मंदिर तोड़े ना ही भगवान की मूर्तियां, वे बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थे। उन्होंने धर्मशीलता की ओर जाने वाले मार्ग तोड़ दिए। धर्म, संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा से बना हुआ एकता का कवच उन्होंने तोड़ दिया। ऐसे आपातकालीन स्थिति में धर्म संकट के समय भारत को प्रतीक्षा थी अवतारी पुरुष की। अब युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से ही जीता जा सकता था। विध्वंसक शस्त्रों की निर्मित को बुद्धिमत्ता की सामर्थ्य से ही रोका जा सकता था। बुद्धिमत्ता के बल से दुनिया को तेजोमय कर पाने वाले ज्ञान भास्कर की विश्व राह देख रहा था।
भारत के प्राणदायी धर्म की, संस्कृति की, परंपराओं की और ऋषि मुनियों के ज्ञान की ज्योति को 7 समुंदर पार ले जाने वाले, साथ ही भारतीय लोग असभ्यता से भरे हुए जंगली धर्महीन नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्मशास्त्र और हमारे विचार दुनिया की तुलना में कई गुना श्रेष्ठ और दूरगामी है। ये सच्चाई आत्मविश्वास से कह पाने वाली दिव्य शक्ति की भारत को आवश्यकता थी। और ऐसी ही दिव्य शक्ति भारत में प्रकट हो गई। हृदय में अनंत प्रेम, सहानुभूति, करुणा और प्रचंड बुद्धि सामर्थ्य से दुनिया को झुकाने की शक्ति लेकर ही इस महान पुरुष ने जन्म लिया। जन्म भी ऐसी जगह लिया जहाँ थी अंग्रेजों की राजधानी कोलकाता। इस दिव्य शक्ति का नाम था युगाचार्य, युग नायक स्वामी विवेकानंद। पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी कोलकाता में निवास करने वाला धार्मिक दंपति। एक दिन उन्हें कोलकाता के दक्षिणेश्वर परिसर में रहने वाले श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पता चला। इसी जगह भगवान श्री रामकृष्ण जी ने भवतारिणी देवी काली माता की पूजन और आराधना की। अपनी कठोर तपस्या के बल पर उन्होंने मां काली का दर्शन प्राप्त किया था। 12 साल अलग अलग धर्मों तथा संप्रदायों की साधना करके उन्होंने ईश्वर का सभी रूपों में अनुभव प्राप्त किया। नरेंद्रनाथ, मैंने सुना है श्री रामकृष्ण तो त्याग मूर्ति है। रुपए पैसे का स्पर्श भी उनके शरीर को चुभता है, उससे उन्हें असह्य वेदना होती है। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। मुझे उनकी परीक्षा लेनी होगी। मैं ये सिक्का उनके आसन के नीचे छुपा देता हूं। उनके आसन के नीचे छुपा देता हूं। अरे, आ गए तुम? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। जी हाँ ठाकुर जी, मैं आ गया। आप आसन तो ग्रहण कीजिए। नरेंद्र, तुमने ठीक ही किया। गुरु को इसी तरह परख लेना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी परीक्षा ली। अब तो भरोसा हो गया तुम्हें। कुछ पूछने आए हो ना? क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उससे कई अधिक स्पष्टता से मैंने ईश्वर को देखा है। गुरु श्री रामकृष्ण देव के मैं शरण जाना चाहता हूँ। मुझे अपना गुरु मानते हो ना? फिर मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ जाओ नरेंद्र, भारत भ्रमण करो। जाओ, मेरा आशीष सदैव तुम्हें मार्ग दिखाएगा। जय काली, जय काली, जय काली, जय
सागर की लहरों पर चलते हुए आगे जा रहे हैं और उन्हें पीछे आने की आज्ञा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के आशीर्वाद से ऐसा ही अवसर उन्हें मिला। अमेरिका शिकागो नगर में सर्वधर्म परिषद होने वाली थी। गुरु कृपा से स्वामी जी को उस बारे में जानकारी मिली। गुरुदेव भगवान श्री रामकृष्ण जी की सहधर्मिणी माता शारदा देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करके ही स्वामी जी सर्वधर्म महासभा में सहभागी होने चले गए। September 1893, Monday morning 10 a.m. Hall of Columbus, Art Institute, Chicago, United States of America. धर्म महासभा का अधिवेशन। Swami Vivekananda from India. Sisters and brothers of America. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have accorded on us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions. मुझे ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों की मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीढ़ी और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय दिया है। ये सभा जो संसार की अब तक की सर्वश्रेष्ठ सभाओं में से एक है, जगत के लिए गीता के उस अद्भुत उपदेश की घोषणा एवं विज्ञापन है जो हमें बतलाता है। ये यथा माम प्रबध्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो कोई मेरी ओर आता है चाहे किसी भी प्रकार से मैं उसको प्राप्त होता हूँ। हमें धर्म मत सिखाइए क्योंकि भारत के पास धर्म का कोई अभाव नहीं है। और अंत में मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि जो घंटे आज सुबह इस सभा के सम्मान में बजाए गए हैं वे समस्त कटुताओं, सांप्रदायिकता और किसी भी प्रकार के अत्याचार के लिए मृत्युमान ही सिद्ध होंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
बहुत बढ़िया। सभी लोग